स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, सम नेचुरल फिनोमेना। So let's start the chapter. Some natural phenomena. Color the boxes blue if the item is related to lightning and red if it is related to earthquake. तो क्या करना है, हमें बॉक्स को ब्लू कलर करना है अगर वो आइटम लाइटनिंग से रिलेटेड है, और अगर वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है तो उसको रेड कलर करना है। In our previous class, we explored the destructive forces of cyclones and tornadoes, natural calamities that wreak havoc on both lives and properties. Now we turn our attention to two other formidable natural phenomena, lightning and earthquake. तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, साइक्लोन और टॉर्नाडोज के बारे में पढ़ा था, नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में पढ़ा था, तो जो लाइव्स और प्रॉपर्टी दोनों को अफेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे हम लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। Lightning, often observed during thunderstorms, manifests as sudden flashes of the light in sky. This phenomenon is caused by a massive discharge of electric charge either between clouds or between different parts of the same cloud, sometimes reaching to the ground. To understand lightning more deeply, it's crucial to grasp the fundamentals of electric charges. तो लाइटनिंग, जिसको हम थंडरस्टॉर्म के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, मैनिफेस्ट एज सडन फ्लैशेस। ये क्या होता है, स्काई में लाइट की सडन फ्लैशेस होती हैं। अब ये फेनोमेना, इससे मैसिव डिस्चार्ज भी हो सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो क्लाउड्स के बीच में या बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम क्लाउड जो ग्राउंड तक आता है। तो लाइटनिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के फंडामेंटल्स को समझें। थ्रू आउट हिस्ट्री, lightning has fascinated humanity. Early civilizations attributed it to the wrath of gods, viewing lightning bolts as divine weapons. However, scientific inquiry into its true nature began in the 18th century. In 1745, experiments demonstrated that electricity could be stored, laying the groundwork for understanding lightning's electrical nature. In 1752, Benjamin Franklin famously conducted his kite experiment, confirming that lightning is an electrical discharge between clouds and the earth. Thus, from the ancient beliefs in the divine anger to modern scientific revelations, lightning remains a captivating and powerful force of nature, demanding both awe and respect. तो हिस्ट्री यानी पहले के टाइम से लाइटनिंग बहुत ही फैसिनेटिंग रही है ह्यूमैनिटी के लिए। तो अर्ली सिविलाइजेशन क्या एट्रीब्यूट करते थे कि ये इट इज द रैथ ऑफ गॉड्स, या फिर लाइटनिंग बोल्ट्स को कैसे देखते थे, डिवाइन वेपन की फॉर्म में देखते थे। लेकिन साइंटिफिक इंक्वायरी स्टार्ट हुई इस पे 18th सेंचुरी में। 1745 में एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर कर सकते हैं, और इससे क्या होंगे, लाइटनिंग इलेक्ट्रिकल नेचर इसका हम समझ सकते हैं। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करे कि काइट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि लाइटनिंग क्या एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है क्लाउड्स और अर्थ के बीच में। तो फ्रॉम द एंशिएंट बिलीफ, पहले एंशिएंट टाइम में क्या माना जाता था कि ये डिवाइन एंगर है, गॉड का डिवाइन एंगर है। और अब साइंटिफिक रिविलेशंस क्या हो रही हैं कि लाइटनिंग क्या है, एक कैप्टिवेटिंग और पावरफुल फोर्स है नेचर का, जो बहुत डिमांड करता है ऑन रिस्पेक्ट। समझते हैं इसको और ज्यादा। इलेक्ट्रिक चार्जेस। Matter is composed of minuscule particles known as atoms, which contain three primary subatomic particles: electron, protons, and neutrons. Electrons carry a negative charge, protons hold a positive charge, and neutrons have no charge, making them neutral. Protons and neutrons reside in the atom's nucleus, while electrons orbit with its central core in the specific paths known as orbits. In a typical atom, the quantity of protons matches the number of electrons, balancing the positive and negative charges. As a result, atoms are generally electrically neutral. तो मैटर किससे बना होता है, माइन्यूसिकल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें एटम्स के। अब इसमें तीन प्राइमरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है इन पे, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, जो इनको न्यूट्रल बनाता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ये एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं सेंट्रल कोर में। तो इनके कुछ स्पेसिफिक पाथ होते हैं जिनको ऑर्बिट को। टिपिकली एक एटम में जो क्वांटिटी होती है प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की, वो इक्वल होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है। एज अ रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ऑब्जेक्ट्स रिमेन न्यूट्रल बिकॉज द चार्जेस विद इन देयर एटम्स आर बैलेंस्ड। दिस न्यूट्रलिटी मीन्स ऑब्जेक्ट्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर, एंड सच ऑब्जेक्ट्स आर रेफर्ड टू एज अनचार्ज्ड बॉडीज। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रल रहते हैं क्योंकि बिकॉज द चार्जेस विद इन देयर एटम, क्योंकि इनके एटम्स में जो चार्जेस होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। तो ये न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स ना तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ना रिपेल करते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम अनचार्ज्ड बॉडीज बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस कम इन टू फॉर्म्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. Under normal conditions, the number of positive charges, that is protons, and negative charges, electrons, in an object are equal, keeping it neutral. However, when objects are charged, they acquire different types of charges due to the transfer of electrons between them.
Electrons being lighter and more mobile than protons move from one object to another, resulting in one object gaining electrons and becoming negatively charged, while the other losing electrons and becoming positively charged. It's crucial to note that only electrons move between objects. Protons, being much heavier, remain stationary. Thus, only negative charges are capable of flowing, while positive charges do not move. Consequently, an object that loses electrons becomes positively charged, and one that gains electron becomes negatively charged. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस की? इलेक्ट्रिक चार्जेस दो फॉर्म में आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नॉर्मल कंडीशन में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जो उसको न्यूट्रल बनाते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स चार्ज होते हैं तो वो क्या होते हैं? इन पे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस आ जाते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स लाइट होते हैं और ये मूवमेंट शो करते हैं प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। तो ये मूव करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, जिससे क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। तो रिजल्टिंग इन एन ऑब्जेक्ट गेनिंग इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो हम क्या नोट कर रहे हैं? हमने यहाँ पे क्या देखा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव कर सकता है, और प्रोटॉन्स काफी हैवी होते हैं तो ये स्टेशनरी रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही कैपेबल होता है कि वो फ्लो कर सके, और पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। A single lightning bolt can contain up to 1 billion volts of electricity and can reach temperature hotter than the surface of sun around 30,000 Kelvin. एक सिंगल लाइटनिंग बोल्ट में 1 बिलियन वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, और ये उस किस टेम्परेचर तक पहुंच सकता है? हॉटर देन द सर्फेस ऑफ सन, सन के सर्फेस से भी हॉटर, अराउंड 30,000 केल्विन तक। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। Phenomena of dash occurs when objects are rubbed together and transfer electrons. तब कौन सा फिनोमिना अकर होता है? जब ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रब किया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। तो वो क्या फिनोमिना है? फिनोमिना ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जेक्ट्स पे डैश चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो जिन ऑब्जेक्ट्स का सेम चार्ज होता है या लाइक चार्ज होता है वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अ डैश इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रेजेंट को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। चार्जिंग बाय डैश इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है चार्ज ऑब्जेक्ट और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो कैसे होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन की हेल्प से। एन ऑब्जेक्ट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, को एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। तो अब मेथड्स देखते हैं ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, बॉडी को चार्ज करने के। वी हैव लर्न्ड दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं जबकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं बॉडी को चार्ज करने के लिए। सबसे पहले है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। When two objects are rubbed together, electrons transfer from the atoms of one object to those of another. The object losing electrons become positively charged while the one gaining electrons become negatively charged. This process known as electrification involves a force generated by rubbing. For example, a plastic rod rubbed with a cloth can become negatively charged while the cloth becomes positively charged. तो अब जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एटम्स, एक ऑब्जेक्ट के एटम से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, जो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है? फोर्स जनरेट हो रही है रब करके। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक रॉड को रब करेंगे अगर क्लॉथ से, तो वो क्या हो जाएगी? प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और क्लॉथ हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे फ्रिक्शन की। Materials require two balloons, woolen cloth, and small pieces of paper. Procedure: inflate two balloons and tie them. Rub one balloon with the woolen cloth for about 1 minute. Bring the balloon close to small pieces of paper and observe what happens. Repeat the process with the second balloon. तो आपको क्या करना है? दो balloons को inflate करना है, उनको tie कर देना है। एक balloon को woolen cloth से rub करना है 1 मिनट के लिए, और फिर दूसरे balloon उसको क्या करना है? small pieces of paper के पास लेके आना है और देखना है क्या होगा। यही same process second balloon से repeat करना है। Observation: the pieces of paper are attracted to the balloon after rubbing it with the woolen cloth. Conclusion: rubbing the balloon with the woolen cloth transfers electrons to the balloon, giving it a negative charge which attracts the neutral paper pieces. तो हमने क्या देखा ऑब्जर्वेशन में कि जो पीसेस हैं पेपर के वो अट्रैक्ट हो रहे हैं बलून से उसको रब करने के बाद विद अ वुलन क्लॉथ। और कंक्लूड क्या किया कि अगर हम बलून को रब कर रहे हैं वुलन क्लॉथ से तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बलून में।
जो उसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है, विच अट्रैक्ट्स दी जो न्यूट्रल पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है. देन चार्जिंग बाय कंडक्शन. This method involves charging an uncharged body by directly touching it with charged object. The uncharged object acquires the same type of charge as the charged object. For example, in an experiment where a positively charged glass rod touches a metal sphere, electrons from the sphere move to the rod, causing the sphere to become positively charged due to electron deficiency. तो अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो रहा है, इस मेथड में क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रही है अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट की बाय डायरेक्टली टचिंग विद अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली टच करके. तो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे क्या आ रहा है, सेम टाइप ऑफ चार्ज आ रहा है एज दी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट था वही चार्ज अनचार्ज्ड पे आ रहा है. फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड को टच किया गया मेटल स्फेयर से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है स्फेयर से मूव हो गए रॉड में, जिससे कि स्फेयर पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. Now objective to demonstrate charging by conduction. अब charging by conduction देखेंगे. Materials required हमें metal rod चाहिए, electroscope and rubber gloves. Procedure: charge a metal rod by rubbing it with woolen cloth. While wearing rubber gloves, touch the charged metal rod to the disc of the electroscope. Observe the movement of electroscope leaves. आपको क्या करना है, मेटल रॉड को चार्ज करना है उसको वुलन क्लॉथ से रब करके. फिर ग्लव्स वेयर करते हुए आपको क्या करना है, मेटल रॉड चार्ज्ड मेटल रॉड को टच करना है टू द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप और ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स के मूवमेंट को. ऑब्जर्वेशन: द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज. आप क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स डाइवर्ज हो जाएंगी जब चार्ज मेटल रॉड टच करेगी डिस्क को. क्या कंक्लूड करा हमने कि इलेक्ट्रोस्कोप बिकम्स चार्ज. ये चार्ज हो जाता है बाय कंडक्शन, ट्रांसफरिंग चार्ज कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, रॉड से इलेक्ट्रोस्कोप में. देन चार्जिंग बाय इंडक्शन. In this technique, a charged object is brought near, but not in contact with an uncharged object. The proximity of the charged object includes a charge in the uncharged object without direct contact. Interestingly, the charge induced on the uncharged object is opposite to the charge of the inducing object. These methods, friction, conduction, and induction, demonstrate the various ways to manipulate and understand electric charges. तब इंडक्शन में क्या हो रहा है, चार्ज ऑब्जेक्ट को पास लेके आया जाता है, लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं लाया जाता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट, उसके पास लेके आया जाता है बस. प्रॉक्सिमिटी ऑफ द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, वो क्या होते हैं, चार्ज इंक्लूड करते हैं अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट में बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के. इंटरेस्टिंगली जो चार्ज होता है अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे इंड्यूस्ड होता है वो अपोजिट होता है इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट. तो ये जो मेथड्स हैं इनसे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को अच्छे से समझ सकते हैं. ऑब्जेक्टिव टू डेमोन्स्ट्रेट चार्जिंग बाय इंडक्शन. मटीरियल्स रिक्वायर्ड: 2 मेटल स्फेयर्स, इंसुलेटेड स्टैंड एंड कनेक्टिंग वायर. प्रोसीजर: प्लेस द 2 metal spheres on the insulated stand, ensuring they are close but not touching each other. Bring a charged rod near one of the spheres without touching it. Connect the 2 spheres with a wire, then remove the wire and the charged rod. Test the charge on both spheres using an electroscope. तो आपको क्या करना है, 2 मेटल स्फेयर्स को इंसुलेटेड स्टैंड पे प्लेस करना है, ये ध्यान रखते हुए कि वो पास में हो लेकिन टच ना करें एक दूसरे को. फिर चार्ज रॉड को लेके आना है आपको एक स्फेयर के पास बिना उसको टच करें. कनेक्ट करना है दोनों स्फेयर को वायर से, फिर वायर को रिमूव कर देना है एंड दी चार्ज रॉड. टेस्ट दी चार्ज, फिर दोनों स्फेयर पे चार्ज आपको टेस्ट करना है इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से. ऑब्जर्वेशन: बोथ स्फेयर्स हैव एन अपोजिट चार्ज. आप क्या देखोगे, दोनों स्फेयर पे अपोजिट चार्ज होगा और वायर एंड रॉड रिमूव करने के बाद. कंक्लूजन: चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन से चार्ज करने पे चार्ज ऑब्जेक्ट में चार्ज इंड्यूस हो जाता है उसके नियर बाय ऑब्जेक्ट से बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के. तो हाउ डज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अकर. अब फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होती है ये बताना. मैच द मेथड ऑफ चार्जिंग विद इट्स डिस्क्रिप्शन. अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पे कुछ मेथड्स गिवन है चार्जिंग के, इनको इनके डिस्क्रिप्शन से मैच करना है. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज. चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ऑब्जेक्ट्स को रब करके. चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें कैसे ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है. इंडक्शन में क्या हो रहा है, बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के होगा. और ग्राउंडिंग में क्या होता है, एक्सेस चार्ज को रिमूव कर दिया जाता है अर्थ से कनेक्ट करके. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्कोप. An electroscope is an instrument designed to detect the presence and type of electric charge on a body. It serves 2 primary purposes. तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कैसे डिजाइन किया गया है कि ये किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप और उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है. तो इसके 2 प्राइमरी पर्पस हैं. टू डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करना कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, और ये डिटरमाइन करना कि जो चार्ज है बॉडी पे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. 2 तरीके के इलेक्ट्रोस्कोप्स होते हैं. सबसे पहले पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप. This electroscope features a small lightweight pith ball suspended by a dry silk thread from an insulated stand. तो इसमें क्या होता है, एक small lightweight pith ball होती है, तो एक dry silk thread से suspended होते हैं from an insulated stand. To detect charge,
When an object is brought near the pith wall without making contact, the behavior of the pith wall reveals whether the object is charged. If the pith wall moves towards the object, it indicates that the object is charged. If the pith wall remains stationary, the object is uncharged. तो कैसे इसे डिटेक्ट किया जाता है? पिथ वॉल के पास ऑब्जेक्ट को लाया जाता है बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के, और वो पिथ वॉल रिवील करती है कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। तो अगर पिथ ऑब्जेक्ट को पास लाने पे पिथ वॉल उसके टुवर्ड्स मूव कर जाए तो इसका मतलब उसमें चार्ज है, और अगर वो स्टेशनरी रहे, उसमें कोई मूवमेंट ना हो, मतलब कि वो अनचार्ज है। टू डिटरमाइन चार्ज टाइप, अब चार्ज टाइप कैसे डिटरमाइन करेंगे? टू डिटरमाइन वेदर द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, अ प्री चार्ज पिथ वॉल electroscope is used. Assume the pith wall is positively charged when the charged object is brought near the pith wall without touching it. If the reaction of the pith wall indicates the nature of the charge, if the pith wall moves away from the object has a positive charge, like charges repel. If the pith wall moves towards the object has negative charge because opposite charges attract. तो चार्ज डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक प्री चार्ज, जो पहले से चार्ज पिथ वॉल होगी, उसको यूज करेंगे। तो हमने अस्यूम करा कि पिथ वॉल पे पॉजिटिवली चार्ज है वो, और जब चार्ज ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पिथ वॉल के पास लेके आएंगे बिना उसको टच करें, तो उसका रिएक्शन हमें बताएगा कि उसमें कैसा नेचर है चार्ज का। तो अगर पिथ वॉल जो है ऑब्जेक्ट से दूर मूव होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और अगर उसके पास मूव होगा तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूजिंग अ पिथ वॉल इलेक्ट्रोस्कोप। तब क्या करेंगे हम? पिथ वॉल इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम प्रेजेंस और टाइप डिटेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें पिथ वॉल इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए, चार्ज प्लास्टिक रॉड एंड चार्ज ग्लास रॉड। प्रोसीजर: ब्रिंग अ चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर द पिथ वॉल एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट। चार्ज प्लास्टिक रॉड लेके आएंगे पिथ वॉल के पास और मूवमेंट ऑब्जर्व करेंगे। फिर ग्लास रॉड को लेके आएंगे जो चार्ज होगी उसके पास, और फिर मूवमेंट रिकॉर्ड करेंगे। दोनों रिएक्शंस नोट करेंगे। ऑब्जर्वेशन: The pith wall is attracted to the charged plastic rod. तो पिथ वॉल क्या होगी? चार्ज प्लास्टिक रॉड से अट्रैक्ट होगी, लेकिन रिपेल होगी चार्ज ग्लास रॉड से। ऐसा क्यों हुआ? कंक्लूजन: द पिथ वॉल इलेक्ट्रोस्कोप ये डिटेक्ट कर सकता है प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ चार्ज को, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। देन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. दिस इलेक्ट्रोस्कोप consists of two thin leaves made of gold and aluminium, which hang from a brass rod. The brass rod has a disc at its upper end and passes through a ebonite cord fitted in the mouth of a glass bottle. The glass bottle is lined with a thin foil at the bottom and is urged to protect the leaves from wind and external influence. तो इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है? दो थिन लीव्स होते हैं गोल्ड या एल्यूमिनियम की, जो एक ब्रास रॉड से हैंग करती है। ब्रास रॉड पे एक डिस्क होता है उसके अपर एंड पे, जो पास करता है थ्रू एन एबोनाइट कॉर्ड, जो फिटेड होता है ग्लास बॉटल के माउथ में। अब ग्लास बॉटल लाइंड होती है टिन फॉइल से उसके बॉटम पे, और अर्थ होती है जिससे कि लीव्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम विंड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। टू डिटेक्ट चार्ज, टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज, ये डिटरमाइन करने के ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, तो लेके आया जाता है इनटू कांटेक्ट विद ब्रास डिस्क के साथ कांटेक्ट में ऑफ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इफ द लीफ ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्जेस, अगर लीफ दूर जाती है तो इसका मतलब इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज चार्ज, कि ऑब्जेक्ट चार्ज है, और अगर लीव्स डाइवर्ज नहीं करती हैं तो ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड है। नाउ टू डिटरमाइन चार्ज टाइप, टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, a pre-charged gold leaf electroscope is used. Assume the electroscope is positively charged. अब ये डिटरमाइन करना है कि चार्ज क्या है उस पर, तो हम एक प्री चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं। अज्यूम करा हमने कि पॉजिटिवली चार्ज है वो। When a charged object is brought into contact with brass disc, जब कॉन्टैक्ट में लेके आया जाएगा, बिहेवियर ऑफ लीफ, अब लीफ का बिहेवियर शो करेगा कि चार्ज का क्या नेचर है। इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स इंक्रीजेस, अगर डाइवर्जेंस बढ़ जाता है तो मतलब ऑब्जेक्ट का क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं और डाइवर्जेंस बढ़ेगा। अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज हो जाता है तो मतलब ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और डाइवर्जेंस कम कर देते हैं। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी. In 1749, American scientist Benjamin Franklin conducted an experiment that led to the understanding that clouds during a thunderstorm carry electric charges. Here a detailed account of his experiment. तो अब 1749 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिससे उन्होंने ये कंक्लूड करा था कि क्लाउड्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म उनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। तो उसका डिटेल्ड अकाउंट यहाँ ये मैंने। Franklin flew a silk kite during a thunderstorm with a metal wire attached to the top corner of the kite. The other end of the wire was connected to a string and the metal key was tied to the lower end of the string. A silk strip served as an insulating handle. When the kite was flown into the storm,
The string became wet from the rain, which allowed electricity to conduct. Franklin observed sparks between his knuckle and the key, indicating that the clouds were electrically charged. The charge traveled from clouds through the metal wire and wet spring to the metal key. This experiment demonstrated that electric charge from the clouds could be transferred to the key, creating an observable spark. तो फ्रैंकलिन ने क्या करा, एक सिल्क की काइट फ्लू करी थंडरस्टॉर्म में, जिसमें मेटल वायर अटैच थी उसके टॉप कॉर्नर पे, और दूसरे एंड पे क्या था, एक स्ट्रिंग था एंड अ मेटल की उस पर टाई कर रखी थी लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। सिल्क स्ट्रिप सर्व कर रही थी उसके इंसुलेटिंग हैंडल को। तो जब काइट को फ्लाई करा गया स्ट्रॉम में, स्ट्रिंग क्या हो गई, वेट हो गई रेन से, विच अलाउड इलेक्ट्रिसिटी टू कंडक्ट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाई। तो फ्रैंकलिन ने क्या ऑब्जर्व करा, स्पार्क्स ऑब्जर्व करे उनके नकल और की के बीच में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्लाउड्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड थे। चार्ज ट्रैवल फ्रॉम क्लाउड्स, चार्ज कहाँ से ट्रैवल करें, क्लाउड से ट्रैवल करें थ्रू मेटल वायर के थ्रू एंड वेट स्ट्रिंग टू द मेटल की। एक्सपेरिमेंट क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है क्लाउड से वो की तक ट्रांसफर हो सकते हैं और ऑब्जर्वेबल स्पार्क उनमें क्रिएट हो सकते हैं। व्हाट डिड बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव करा था आपको बताना है। देन क्लाउड्स एंड लाइटनिंग। Clouds are made up of tiny water droplets. These droplets become charged due to friction as they move and rub against each other. When the electric charge in one part of cloud is attracted to the another part of the same cloud or to another cloud, the flow of charge causes the air to glow, resulting in lightning. तो अब क्लाउड कैसे बने होते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं। अब ये ड्रॉपलेट चार्ज हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से जब ये मूव करते हैं और रब करते हैं एक दूसरे। When the electric charge is in one part of cloud, जब क्लाउड के एक पार्ट में अट्रैक्ट होता है दूसरे पार्ट से ऑफ द सेम क्लाउड या दूसरे क्लाउड से, तो चार्जेस फ्लो करते हैं एयर से टू ग्लो, रिजल्टिंग इन अ लाइटनिंग, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। तो यहाँ पे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। Lightning occurs when a charged cloud passes over another cloud, inducing an opposite charge in the second cloud by induction. The attraction between opposite charges in the cloud is very strong, but the air between the clouds acts as an insulator, preventing the charges from coming together and neutralizing. However, when the amount of charge increases significantly, the insulating property of the air breaks down. This breakdown is called a discharge. तो lightning कैसे होती है, जब एक चार्ज क्लाउड पास करता है दूसरे क्लाउड से और उसमें वो अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देता है। अब अट्रैक्शन होती है अपोजिट चार्जेस में, वो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जो एयर होती है क्लाउड्स के बीच में वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है और इन चार्जेस को पास नहीं आने देती है और न्यूट्रलाइज नहीं होती है। लेकिन जब अमाउंट ऑफ चार्ज सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एयर की इंसुलेशन प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाती है और इस ब्रेकडाउन को हम डिस्चार्ज बोलते हैं। During this discharge, the electric charge can pass through the previously insulating air gap. The electrical energy heats the air to extremely high temperature, causing it to glow and produce a visible flash of light known as lightning. This discharge is accompanied by a spark and a crackling sound due to the rapid expansion of heated air, which we hear as thunder. तो इस डिस्चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर सकता है प्रीवियसली इंसुलेटिंग एयर गैप से। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये हीट करती है एयर को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर तक, जिसकी वजह से वो ग्लो करती है और एक विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है जिसको लाइटनिंग। तब ये डिस्चार्ज के साथ एक स्पार्क भी आती है, क्रैकलिंग साउंड भी आती है, जो किस वजह से आती है, हीटेड एयर के रैपिड एकदम तेजी से एक्सपैंड होने की वजह से, जिसको हम थंडर की फॉर्म में समझते हैं। अब इस प्रोसेस को अगर समराइज करें तो क्लाउड्स क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। चार्ज क्लाउड में क्या होता है, अपोजिट चार्ज, वो अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देता है दूसरे क्लाउड में। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्जेस में जो इनिशियली इंसुलेटेड होता है एयर की वजह से, लेकिन जब ये चार्ज बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एयर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से डिस्चार्ज होता है। अब डिस्चार्ज क्या करते हैं, एयर को हीट कर देता है जिसकी वजह से फ्लैश ऑफ लाइट होती है यानी लाइटनिंग होती है और लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज थंडर होता है। द फ्रिक्शन बिटवीन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, अब टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है इन अ क्लाउड, वो क्या करता है, इनफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है टू क्रिएट अ लाइटनिंग बोल्ट, जिससे लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट होती है, डेमोन्स्ट्रेटिंग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ सीमिंगली स्मॉल इंट्रैक्शंस इन नेचर। नाउ इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। अब लाइटनिंग के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। लाइटनिंग कैन बी फैटल टू ह्यूमन एंड एनिमल्स एज इफ दे आर स्ट्रक डायरेक्टली। इट कैन कॉज फायर्स बोथ इन बिल्डिंग्स एंड इन नेचुरल सेटिंग्स लाइक फॉरेस्ट। It can damage or destroy buildings and structures, shatter trees and ignite forest fires. लाइटनिंग डेंजरस भी हो सकती है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए अगर वो डायरेक्ट स्ट्राइक करेगी। उसकी वजह से फायर भी हो सकती है बिल्डिंग्स और नेचुरल सेटिंग जैसे कि फॉरेस्ट में। डैमेज हो सकती है बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को, ट्रीज शैटर हो सकते हैं और फॉरेस्ट फायर्स भी इग्नाइट हो सकते हैं। नाउ यूजफुल इफेक्ट्स क्या हैं? The intense heat and high temperatures produced during lightning allow nitrogen in the atmosphere to combine with oxygen, forming nitrogen oxides. These oxides dissolve in rainwater,
creating a dilute solution of nitric acid. This natural process produces nitrogenous compounds that are essential for plant growth, effectively fertilizing the soil. तो ये जो इंटेंस हीट और हाई टेम्परेचर है, ये जो लाइटिंग से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अलाउ करता है इन द एटमॉस्फेयर कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करें. अब ये ऑक्साइड डिजोल्व होते हैं रेन वाटर में, जो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं नाइट्रिक एसिड का. ये नेचुरल प्रोसेस जिससे नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जरूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, और ये क्या करते हैं, सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं. Lightning also converts some of the atmospheric oxygen into the ozone. Ozone forms a protective layer in the Earth's atmosphere, shielding the planet from harmful ultraviolet rays from the sun. This ozone layer prevents these dangerous radiations from reaching the Earth's surface, providing a crucial protective function. तो लाइटनिंग और क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कुछ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ओजोन में. अब ओजोन प्रोटेक्टिव लेयर की तरह प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जो क्या करता है, प्लैनेट को शील्ड करके रखता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से फ्रॉम द सन. अब ओजोन लेयर क्या करते हैं, डेंजरस रेडिएशन प्रिवेंट करता है कि ये अर्थ के सरफेस तक आए और एक प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करता है. देन लाइटनिंग कंडक्टर. A lightning conductor is a safety device designed to protect tall buildings from the potentially devastating effects of lightning strikes. This device consists of a long copper rod with sharp points or spikes that objects above the top of the building. The rod extends from the highest point of the building down along its outer wall and connects to a copper plate buried deep into the ground. Here's how it works. तो लाइटनिंग कंडक्टर का एक सेफ्टी डिवाइस है जो टॉल बिल्डिंग्स को बचाने के लिए बनाया जाता है कि वो लाइटनिंग स्ट्राइक से इफेक्ट ना हो. तो अब ये डिवाइस क्या होता है, लॉन्ग कॉपर रॉड होती है जिसके शार्प पॉइंट्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, बिल्डिंग के टॉप पे होते हैं ये. अब ये रॉड क्या करती है, एक्सटेंड करती है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग से डाउन अलोंग इट्स आउटर वॉल से एक्सटेंड करती है ये नीचे तक, जो कनेक्टेड होती है कॉपर प्लेट से और ग्राउंड में वो डीपली बरीड होती है. तो कैसे वर्क करता है ये, व्हेन अ चार्ज क्लाउड passes over the building, it induces an opposite charge on the spikes of the lightning conductor. This induced charge then travels down the copper rod and dissipates safely into the ground through a buried copper plate. By providing a direct path for the electrical charge to travel from the building to the earth, lightning conductor prevents the formation of lightning spark and thus protects the building from damage. तो जब चार्ज क्लाउड पास होता है बिल्डिंग से, तो वो क्या होता है, अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देता है उसके लाइटनिंग कंडक्टर के स्पाइक्स में. अब ये इंड्यूस चार्ज ट्रैवल करता है कॉपर रॉड से और ये सेफली ग्राउंड में बरी हो जाता है. बाय प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट पाथ, अभी जो डायरेक्ट पाथ प्रोवाइड करे इलेक्ट्रिकल चार्ज का कि वो सेफली ग्राउंड अर्थ में ट्रैवल कर जाए, बिल्डिंग से लेके ग्राउंड तक चला जाए, लाइटनिंग कंडक्टर प्रिवेंट करता है कि लाइटनिंग स्पार्क फॉर्म हो या बिल्डिंग को डैमेज हो. सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग. इफ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हो तो क्या सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए आपको. टेक शेल्टर इन अ बिल्डिंग और कार. Immediately find refuge inside a substantial building or a car with closed windows. अगर आप बाहर हो कहीं तो आपको इमीडिएटली बिल्डिंग या कार में शेल्टर लेना चाहिए. अवॉइड ओपन एरियाज से दूर रहना है, फ्रॉम ओपन फील्ड, हिल टॉप्स या अदर एक्सपोज्ड एरियाज. अवॉइड वाटर बॉडीज से दूर रहने, जैसे कि लेक्स, रिवर्स या बाकी वाटर बॉडीज. अवॉइड ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना है. इंस्टेड लो वेजिटेशन या फिर शेल्टर आपको फाइंड करना है फॉरेस्टेड एरिया में जहाँ पे शॉर्टर ट्रीज हो. स्टे अवे फ्रॉम मेटल से दूर रहना है, मेटल फेंसेस, पोल्स या बाकी स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. क्राउच लो ऑन द ग्राउंड. अगर कोई शेल्टर अवेलेबल नहीं है तो आपको क्राउच करना है ऑन द बॉल्स ऑफ योर फीट, मेकिंग योरसेल्फ एज स्मॉल. जितना आप खुद को स्मॉल कर सकते हो उतना स्मॉल कर लेना है. प्लेस योर हैंड्स ऑन द नीज, अपने हैंड्स को नीज पे प्लेस करना है और हेड को अपने आर्म्स के बीच में. दिस पोजीशन ये क्या करता है, आपका कॉन्टैक्ट मिनिमाइज कर देता है ग्राउंड के साथ और आपकी प्रोफाइल को लोअर करता है. नाउ इफ यू आर इंडोर, अगर आप अंदर हो, स्टे ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज नहीं करना है, उनको अवॉइड करना है. स्टे अवे फ्रॉम विंडोज, डोर्स, कंक्रीट वॉल्स, इन सब से दूर रहना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अनप्लग इलेक्ट्रॉनिक्स. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है सबको अनप्लग कर देना है, कुछ भी यूज नहीं करना है. अवॉइड बाथिंग और शावरिंग. आपको बाथ या शावर नहीं करना है स्टॉर्म में. एंड यूज मोबाइल फोन्स यूज करना है आपको कम्युनिकेशन के लिए इंस्टेड ऑफ लैंडलाइंस. ऑब्जेक्टिव to simulate and understand the process of lightning. अब lightning का process समझेंगे. Materials required: styrofoam plate, aluminium pipe pan, woolen cloth and metal pin. Procedure: rub the styrofoam plate with a woolen cloth to charge it. Place the aluminium pipe fan on the styrofoam plate. Touch the pipe fan with a metal pin while holding it in an insulated handle. तब क्या करना है आपको, स्ट्रायोफोम प्लेट को रब करना है वुलन क्लॉथ की हेल्प से उसको चार्ज करने के लिए. फिर आपको एल्यूमिनियम पाई पैन को प्लेस करना है स्ट्रायोफोम प्लेट पे. पाई पैन को टच करना है आपको मेटल पिन से, उसको होल्ड करते हुए इंसुलेटेड हैंडल की.
ऑब्जर्वेशन ऑफ स्मॉल स्पार्क, आपको एक स्मॉल स्पार्क ऑब्जर्व होगा जब मेटल पिन टच करेगी पाइपलाइन को। कंक्लूजन, ये स्पार्क सिमुलेट करता है लाइटनिंग प्रोसेस को, जहाँ पे चार्ज डिफरेंस लीड्स टू डिस्चार्ज, जिसकी वजह से डिफरेंस हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर। फिल इन द ब्लैंक्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं उसके 2 एग्जांपल देने हैं एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के। तो वो क्या हो सकते हैं? बलून रबिंग ऑन हेयर, हेयर पे जो बलून रब कर रहा है, फिर फोटो कॉपियर हो सकता है। नेम 2 डिवाइसेस जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, तो वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोस्कोप या फिर वैन डी ग्रॉफ जनरेटर हो जाएगा। आइडेंटिफाई 2 नेचुरल फिनोमेना दैट यूजेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसके नेचुरल फिनोमेना क्या हो जाएंगे? लाइटनिंग हो जाएगा या फिर थंडर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। देन अर्थक्वेक, an earthquake is a natural event that can lead to substantial destruction and significant loss of life and property. It is characterized by the sudden, sometimes violent shaking of the earth, which usually lasts for a brief period. Earthquakes are typically accompanied by tremors and rumbling sounds. Various factors can trigger an earthquake, including bomb explosions, volcanic eruptions, and movement of lithospheric plates. तो अर्थक्वेक क्या एक नेचुरल इवेंट है जिसकी वजह से सब्सटैंशियल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। तो इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? ये सडन होता है, कई बार वायलेंट शेकिंग होती है अर्थ की जो ब्रीफ पीरियड तक रहती है। तो अर्थक्वेक्स टिपिकली, इसके अर्थक्वेक्स के साथ में क्या आते हैं? ट्रेमर्स या फिर रम्बलिंग साउंड्स आती हैं, रम्बलिंग साउंड्स। वेरियस फैक्टर्स कैन ट्रिगर एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक काफी फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोजन, वोल्केनिक इरप्शन या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह। Causes of earthquakes. Understanding the causes of earthquakes involves examining several key factors. Movement of tectonic plates. The Earth's structure is composed of 3 layers: the crust, the mantle, and the core. The crust, which is the outermost layer, is predominantly solid. Beneath it lies the mantle, which, due to high pressure, has a semi-molten state in its upper parts and becomes more solid in its deeper regions. The core consists of an outer molten layer and a solid inner core. The lithosphere includes the crust and the upper mantle and is not a continuous layer but is divided into numerous tectonic plates. These plates move slowly but constantly within the earth, and their interactions can be stored a vast amount of energy. तो अब अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे कंपोज होता है? 3 लेयर्स में होता है, क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। क्रस्ट क्या है? आउटरमोस्ट लेयर है जो प्रीडोमिनेंटली सॉलिड होती है। अब उसके अंदर मेंटल होती है जो हाई प्रेशर की वजह से सेमी मोल्टन स्टेट में होती है इन दी अपर पार्ट्स और सॉलिड हो जाती है डीपर रीजन। फिर कोर में क्या होता है? आउटर मोल्टन लेयर होती है और ये सॉलिड इनर कोर। लिथोस्फेयर में क्रस्ट और अपर मेंटल होते हैं एंड और ये नॉट अ कंटिन्यूस लेयर नहीं होती, लेकिन ये डिवाइडेड होती है न्यूमरस टेक्टोनिक प्लेट्स में। अब ये प्लेट स्लोली मूव करती हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली करती हैं विद इन दी अर्थ, और इनके इंटरेक्शन में क्या होता है? काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। During an earthquake, there is a sudden movement or fracture within the lithosphere. The edges of tectonic plates may grind against each other forcefully, causing displacement, deformation, crushing, or fracturing. These movements create vibration or tremors in the lithosphere, leading to an earthquake. The Earth's surface is divided into 7 major tectonic plates and several smaller ones, all contributing to seismic activity. तो अर्थक्वेक में क्या होता है? सडन मूवमेंट होता है, फ्रैक्चर होता है लिथोस्फेयर में। तो जो एजेस होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की ग्राइंड हो जाती हैं एक दूसरे पे फोर्सफुली, जिससे डिस्प्लेसमेंट, डिफॉर्मेशन, क्रशिंग या फ्रैक्चरिंग होती है। अब ये मूवमेंट्स क्या करती हैं? वाइब्रेशन या ट्रेमर्स क्रिएट करती हैं लिथोस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। तो अर्थ के सर्फेस को 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड होता है ये, और सेवरल कुछ स्मॉलर वंस भी होते हैं, सब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सेस्मिक एक्टिविटी। देन वॉल्केनिक इरप्शंस. A volcano is a vent or fissure in the Earth's crust through which hot molten materials, gases, and ashes are ejected during under high pressure. When a volcanic eruption occurs, the energy released can cause significant vibrations in the Earth's crust, resulting in an earthquake. Such seismic activity may occur simultaneously with or shortly before a volcanic eruption. As the magma moves and pressure builds up beneath the surface, these earthquakes, known as volcanic earthquakes, can be used to predict eruptions. तो वोल्केनो क्या है? एक वेंट है या फिशर है अर्थ के क्रस्ट में, थ्रू विच, जिसमें से हॉट मॉल्टन मटेरियल, गैसेस और एश इजेक्ट होते हैं हाई प्रेशर में। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, एनर्जी रिलीज जो होती है उससे क्या होता है? सिग्निफिकेंट वाइब्रेशन होती है अर्थ क्रस्ट का, जिसकी वजह से अर्थक्वेक हो रहा है। अब ऐसी सेस्मिक एक्टिविटी साइमल्टेनियसली हो सकती है, शॉर्टली हो सकती है बिफोर वोल्केनिक इरप्शन, क्योंकि मैग्मा मूव करता है एंड प्रेशर बिल्ड्स अप, और प्रेशर बिल्ड हो जाता है सर्फेस के नीचे। अब ये अर्थक्वेक, जिसको वोल्केनिक इरप्शन अर्थक्वेक्स बोलते हैं, इसकी वजह से इरप्शंस हो सकते हैं। Dislocation or faults in the crust. Over millions of years, the continuous movement of tectonic plates has created weak points in the Earth's crust known as faults.
These faults are typically located along the boundaries of tectonic plates. Fault zones are regions of weakness where earthquakes are more likely to occur. When stress along these faults exceeds the strength of rocks, it results in a sudden release of energy causing an earthquake. The most well-known fault line is the San Andreas Fault in California, which is a major source of seismic activity. So millions of years क्या हुआ कंटिन्यूस मूवमेंट है टेक्टोनिक प्लेट्स का, जिसकी वजह से वीक पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं अर्थ के क्रस्ट में, जिनको हम फॉल्ट्स बोलते हैं। अब ये फॉल्ट्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पे। तो फॉल्ट जोन्स क्या है? रीजन्स हैं वीकनेस का, जहाँ पे अर्थक्वेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब जो स्ट्रेस होता है अलॉन्ग दिस फॉल्ट जब वो बढ़ जाता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स उसमें क्या होता है? सडन एकदम से रिलीज होते हैं एनर्जी का, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। द मोस्ट वेल नोन फॉल्ट लाइन वो कौन सी है? सैन एंड्रियास फॉल्ट है इन कैलिफोर्निया, जो मेजर सोर्स है सेस्मिक एक्टिविटी का। एंड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, human activities such as underground nuclear testing can also include earthquakes. The powerful vibrations generated by such explosions can lead to seismic activity in the underground surrounding areas. These induced earthquakes can occur due to a sudden release of energy from the explosion, which causes the ground to shake. Scientists use seismographs to differentiate between natural and man-made earthquakes based on their wave pattern. तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, इसमें क्या आ जाता है? अर्थक्वेक भी इंक्लूड होता है। तो पावरफुल वाइब्रेशन जो जनरेट हो रही है ऐसे एक्सप्लोजन से, इनकी वजह से क्या हो सकती है? सेस्मिक एक्टिविटी हो सकती है सराउंडिंग एरिया में। तो ये इंड्यूस्ड अर्थक्वेक ये क्या होते हैं? ये कैसे होते हैं? ड्यू टू सडन रिलीज, एकदम से जो एनर्जी का रिलीज होता है एक्सप्लोजन से, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, विच कॉजेज द ग्राउंड टू शेक, जिसकी वजह से ग्राउंड क्या करता है? शेक करता है। तो साइंटिस्ट सेस्मोग्राफ का यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने में नेचुरल और मैन मेड अर्थक्वेक में, इनके वेव पैटर्न और ओरिजिन के बेसिस पे। व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक? प्राइमरी कॉज बताना है आपको अर्थक्वेक का। एनर्जी रिलीज बाय मैग्नीट्यूड 7.0 अर्थक्वेक इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी of 32 million tons of TNT, highlighting the immense power of these natural events. तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है बाय मैग्नीट्यूड 7.0 अर्थक्वेक, ये किसके इक्विवेलेंट है? तो द एनर्जी ऑफ 32 मिलियन टन्स ऑफ TNT, जो हाईलाइट कर रहा है कि नेचुरल इवेंट की कितनी ज्यादा इमेंस पावर होती है। देन अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक. An earthquake's occurrence can be understood in a simplified manner through three key steps. 3 key steps से समझ सकते हैं हम इसको। Accumulation of stress. Tectonic plates are constantly moving. As they interact, stress builds up along faults and plates boundaries. This stress accumulates over time due to friction between moving plates. And sudden release of energy. When accumulated stress exceeds the rock's strength, it results in sudden release of energy. This release happens rapidly, causing the rocks to break or slip along the fault lines. Propagation of seismic waves. The energy released during the earthquake propagates in the form of seismic waves, which travel through the Earth's interior and surface, causing the ground to shake. तो अब क्या हो रहा है? टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं और वो जैसे इंटरेक्ट करती हैं, स्ट्रेस बिल्डअप होता है उनके फॉल्ट में और प्लेट बाउंड्रीज में। अब ये स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता रहता है टाइम के साथ, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है इन मूविंग प्लेट्स में। देन सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, तो ये जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है जब ये बढ़ जाता है रॉक की स्ट्रेंथ से भी एक्सीड कर जाता है, तो इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है एकदम से बहुत ज़्यादा, और ये रैपिडली होता है, जिसकी वजह से रॉक्स ब्रेक होती हैं, स्लिप होती हैं फॉल्ट लाइन्स में। एंड एनर्जी जो रिलीज होती है अर्थक्वेक में, वो प्रोपोगेट करती है, ट्रैवल करती है सेस्मिक वेव्स की फॉर्म में, जो अर्थ के इंटीरियर में और सर्फेस में ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से ग्राउंड शेक होता है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. Seismic waves generated during an earthquake are classified into 3 main types. 3 main types हैं इनके on the mode of travel. सबसे पहले आते हैं प्राइमरी वेव्स, P waves और push waves. P waves are the fastest seismic waves traveling at a speed of about 6 kilometers per second. These waves are the first to arrive at a seismic station after an earthquake occurs. P waves cause small displacement as they compress and expand the material they move through, similar to sound waves. They can travel through both solid and liquid layers of the earth. तो ये जो P waves हैं, ये फास्टेस्ट सेस्मिक वेव्स हैं जो ट्रैवल करती हैं 6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब ये वो वेव्स हैं, ये फर्स्ट वेव्स हैं टू अराइव एट सेस्मिक स्टेशन एक अर्थक्वेक होने के बाद। तो पी वेव्स में क्या होता है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होते हैं, जैसे ये कंप्रेस होती हैं और एक्सपैंड करती हैं उस मटेरियल को जिसके थ्रू ये मूव करती हैं, सिमिलर टू साउंड वेव्स। तो अब ये ट्रैवल कर सकते हैं सॉलिड एंड लिक्विड दोनों लेयर्स में ऑफ अर्थ। देन सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स और शेक वेव्स. S waves travel slower than P waves and arrive at seismic stations after P waves. These waves cause more substantial shaking and are responsible for the strong shaking vibrations felt during an earthquake. S waves can only travel through solid materials and are unable to pass through liquids, which helps in distinguishing the Earth's internal structure. S waves slowly move करती हैं, then P waves और ये seismic station पे P waves के बाद पहुंचती हैं।
अब ये वेव ज़्यादा सब्सटैंशियल शेकिंग होती है, ये ज़्यादा सब्सटैंशियल शेकिंग कॉज करती हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्ट्रॉन्ग शेकिंग वाइब्रेशन के लिए जो अर्थक्वेक में फील हो। तो एस वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं सिर्फ सॉलिड मटेरियल से और ये लिक्विड से पास नहीं हो सकती हैं, जो इनके डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है अर्थ स्ट्रक्चर का। एंड सरफेस वेव्स या एल वेव्स, L waves travel along the Earth's surface and are last to arrive at seismic stations. These waves are the most powerful and cause the most damage during an earthquake. Unlike P waves and S waves, their effects are not felt deep within the earth but are concentrated on the surface, leading to significant destruction of buildings and infrastructure. अब ये जो L waves हैं ये ट्रैवल करती हैं अर्थ के सर्फेस के अलॉन्ग और ये लास्ट होती हैं सेस्मिक स्टेशन पे पहुंचने वाली। तो ये वेव सबसे पावरफुल होती हैं और ये सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं अर्थक्वेक। पी वेव्स और एस वेव्स की तरह ये अर्थ में डीपली फील नहीं होती हैं, लेकिन ये सरफेस पे कंसंट्रेटेड होती हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डैमेज होता है। देन अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी। Understanding earthquake involves familiarizing oneself with several key terms. There are some essential concepts and their explanation. तो earthquake से related अब यहाँ पे कुछ terms और उनके explanations हैं। First is seismology. Seismology is a scientific discipline dedicated to the study of earthquakes and the various phenomena associated with them. This field encompasses the analysis of seismic waves, the mechanics of faulting, and the prediction of earthquake activity. Focus or hypocenter. The focus of an earthquake, also known as hypocenter, is the initial point within the earth where the rupture or seismic activity originates. This underground location is the source from which seismic waves emit in all directions. तो सेस्मोलॉजी क्या साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो किसको डेडिकेटेड है, अर्थक्वेक की स्टडी को और वेरियस फिनोमेना जो उससे रिलेटेड है। तो ये फील्ड किसको एम्पास करता है, सेस्मिक वेव को एनालाइज करते हैं, मैकेनिक्स ऑफ फॉल्टिंग और अर्थक्वेक की एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करना। ना फोकस या हाइपर सेंटर क्या है, फोकस है अर्थक्वेक का जिसको हाइपर सेंटर भी बोलते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है अर्थ का, जो रप्चर होता है ये सेस्मिक एक्टिविटी जहाँ से ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है। दिस अंडरग्राउंड लोकेशन ये सोर्स है जहां से सेस्मिक एक्टिविटी इमेनेट यानी स्टार्ट होती है इन ऑल डायरेक्शंस। एपिसेंटर. Epicenter is the point on the Earth's surface that lies directly above the focus or a hypocenter of an earthquake. It is at the surface location where the effects of the earthquake are most strongly felt and the intensity at its maximum. एपिसेंटर क्या है, वो पॉइंट है अर्थ सरफेस का जो डायरेक्टली फोकस के ऊपर होता है और ये वो सरफेस लोकेशन पे होता है जहाँ पे अर्थक्वेक के इफेक्ट सबसे ज्यादा फील होते हैं और इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम। सेस्मिक वेव्स. Seismic waves are the energy waves generated by the sudden release of energy during an earthquake. These waves travel through the Earth's interior and along its surface, causing the ground to shake. Seismic waves are also referred to as shock waves. तो seismic waves क्या है, एनर्जी वेव्स हैं। तो कैसे जनरेट होती हैं, सडन एनर्जी के रिलीज से जनरेट होती हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अब ये वेव्स ट्रैवल करती हैं अर्थ के इंटीरियर से उसके सर्फेस तक आती हैं और इसकी वजह से ग्राउंड शेक होता है, तो इनको हम शॉक वेव्स। सेस्मोग्राफ. A seismograph is an instrument used to detect, record, and measure the intensity and characteristics of seismic waves. It provides crucial data about the earthquake's magnitude, duration, and epicenter location. तो सेस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट, रिकॉर्ड और मेजर करने के लिए यूज होता है इंटेंसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेस्मिक वेव्स को। तो ये क्या करता है, क्रूशियल डेटा प्रोवाइड करता है ये अबाउट अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड, ड्यूरेशन एंड एपिसेंटर की लोकेशन। देन सेस्मोलॉजिस्ट. Seismologists are scientists who specialize in their study of earthquakes and seismic waves. Their work involves analyzing data collected by seismographs, researching and causes the effects of earthquakes, and developing methods to predict and mitigate earthquake hazards. Seismologist क्या है, साइंटिस्ट हैं जो स्पेशलाइज हैं अर्थक्वेक की स्टडी और सेस्मिक वेव्स की स्टडी के लिए। तो इनके वर्क में क्या आ जाता है कि डेटा कलेक्ट करना सेस्मोग्राफ का, उसको एनालाइज करना, उसके कॉजेज को रिसर्च करना, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक ये सब देखना और मेथड्स डेवलप करना कि अर्थक्वेक के हजार्ड्स को प्रेडिक्ट कर सकें, मिटिगेट कर सकें, स्टॉप कर सकें। Measuring earthquake magnitude. The magnitude or intensity of an earthquake is measured by using various scales, with the most known being the Richter scale. This logarithmic scale quantifies the amount of energy released at the earthquake's focus and ranges from 0 to 10. तो अब जो मैग्नीट्यूड है या इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की उसको मेजर करते हैं हम कुछ स्केल्स का यूज करके। द मोस्ट वेल नोन, जो सबसे वेल नोन स्केल है वो क्या है, रिचर स्केल है। लॉगरिथमिक स्केल क्या करता है, क्वांटिफाई करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है अर्थक्वेक के फोकस पर और इसकी रेंज होती है 0 से 10 के। 0 से 2.9 अर्थक्वेक जो इस रेंज के होते हैं वो माइल्ड होते हैं और टिपिकली डू नॉट कॉज, ये कोई नोटिसेबल डैमेज नहीं करते हैं। अब 3 to 5.5 जो इस रेंज में अर्थक्वेक होते हैं ये मॉडरेट होते हैं। दे कैन रिजल्ट इन ब्रोकन विंडोज, इसकी वजह से विंडोज ब्रेक हो सकती हैं और ऑब्जेक्ट्स भी गिर सकते हैं। 5.6 to 7.0
These earthquakes are strong, ये earthquakes काफी strong होते हैं and can cause slight to significant damage, और इनसे कुछ अच्छा damage हो सकता है. Well constructed buildings में minor damage हो सकता है, और अगर poorly constructed buildings हैं तो उनमें heavy damage हो सकता है. 7.1 to 7.9. Earthquakes in this category are extremely strong. Earthquakes जो इस category में होते हैं वो बहुत strong होते हैं और capable होते हैं कि उनमें severe damage हो सकता है, including the destruction of even well-built structures. 8.0 to 10.0. अब earthquake जो इस magnitude के होते हैं वो catastrophic होते हैं, जिससे massive destruction होता है और widespread damage होता है large area. Now consequences of an earthquake. Earthquakes can result in severe loss of life and property, with the extent of damage depending largely on earthquake's magnitude and location. तो earthquake की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का सीवियर डैमेज भी हो सकता है. अब वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड और लोकेशन पे. तब यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स देखते हैं उसके. स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस. Violent shaking can cause buildings, bridges and other structures to collapse. अब बहुत तेजी से जो शेक होते हैं इसकी वजह से बिल्डिंग्स, ब्रिजेस या बाकी स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो सकते हैं, जिससे कैजुअलिटीज और इंजरीज हो सकती हैं. Fires. Earthquakes can rupture gas lines and electrical cables, sparking fires that can quickly spread and cause further damage and loss of life. Landslides in mountainous region. The tremors can trigger landslides, burying homes, roads, and other infrastructure under rocks and debris. Tsunamis. Underwater earthquakes can displace large volumes of water, generating tsunamis that flood coastal areas, leading to widespread destruction and loss of life. तो earthquake की वजह से गैस लाइन रप्चर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स रप्चर हो सकते हैं, जिनसे फायर स्पार्क हो सकती है जो बहुत तेजी से स्प्रेड होती है और डैमेज कर सकती है. माउंटेनियस रीजन में क्या हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो सकते हैं, होम्स, रोड्स ये सब बरी हो सकते हैं, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बरी हो सकते हैं अंडर रॉक एंड डेब्रिस. सुनामी. अंडर वाटर अर्थक्वेक ये क्या करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, जिससे सुनामी आ सकती है फ्लड कोस्टल एरिया में, और उससे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है. वाटर सप्लाई डिस्ट्रप्शंस. The shaking can break underground water pipelines, disrupting the water supply and making it difficult for affected areas to access clean water. Sewage leaks. Earthquakes can rupture sewer lines, leading to sewage spills that can contaminate water supplies and pose significant health risks. Communication failures. Earthquakes can damage communication networks, cutting off the affected area from emergency services and the outside world, complicating rescue and relief efforts. तो अब ये जो शेकिंग है उसकी वजह से वाटर पाइप्स ब्रेक हो सकते हैं और वाटर सप्लाई डिस्टरप्ट हो सकता है, जिसकी वजह से क्लीन वाटर एक्सेस करना डिफिकल्ट होगा. अर्थक्वेक की वजह से सीवर लाइंस रप्चर हो सकते हैं, जिससे कि कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई होगा और उससे हेल्थ रिस्क हो सकता है. कम्युनिकेशन नेटवर्क को डैमेज हो सकता है अफेक्टेड एरिया में, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुंच पाएंगी आउटसाइड वर्ल्ड से, इसकी वजह से रेस्क्यू करना भी कॉम्प्लिकेट हो सकता है. ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. अब अलग अलग तरह की अर्थक्वेक वेव्स को समझेंगे. मटेरियल्स रिक्वायर्ड स्लिंकी एंड रोप. प्रोसीजर. Press the slinky on a smooth surface and generate a push wave by compressing and releasing a one end. Press the rope and generate a shaky wave by moving one end up and down. Observe the movement of waves in both cases. तो आपको क्या करना है, एक स्मूथ सर्फेस पे स्लिंकी को स्ट्रेच करना है और एक पुश वेव जनरेट करनी है, उसको कंप्रेस और रिलीज करके एक एंड. फिर आपको क्या करना है, रोप को स्ट्रेच करना है और उस पर शेक वेव जनरेट करनी है, उसको अप एंड डाउन मूव करके आपको दोनों के मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्वेशन. द स्लिंकी शोज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. स्लिंकी क्या दिखाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जो रोप है वो ट्रांसवर्स वेव शो करेगा. कंक्लूजन. पी वेव्स आर कंप्रेशनल वेव्स. पी वेव्स क्या है, कंप्रेशनल वेव्स हैं जो ट्रैवल करते हैं सॉलिड और लिक्विड से, जबकि जो एस वेव्स हैं वो शेयर वेव्स हैं जो सिर्फ सॉलिड्स में ट्रैवल करती हैं. कंस्ट्रक्टिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग. अब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना देखते हैं. Since earthquakes are unpredictable, constructing buildings that can withstand seismic activity is crucial. क्योंकि earthquake को हम predict नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी buildings बनाई जाए जो seismic activity को भी survive कर जाएं, ये important है. Flexible building materials. Using materials like steel and reinforced concrete, which can absorb and dissipate seismic energy, help structures bend rather than break during an earthquake. Wear isolation system. These systems involve placing bearings or pads between a building and its foundation, allowing the structure to move independently of ground motion and reducing the amount of energy transferred to the building. तो ऐसा मटेरियल यूज करा जाए जैसे कि स्टील या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज करा जाए जो सेस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और स्ट्रक्चर को बेंड में हेल्प करे rather than break, कि ब्रेक ना हो, बेंड हो जाए ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. बेस आइसोलेशन सिस्टम इन्वॉल्व प्लेसिंग बियरिंग्स या पैड्स लगाए जाए बिल्डिंग और उसके फाउंडेशन के बीच में, जिससे कि स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली मूव कर सके ऑफ ग्राउंड मोशन और उससे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बिल्डिंग में ट्रांसफर हो रही है वो रिड्यूस होता है.
क्रॉस ब्रेसिंग, इनकॉर्पोरेटिंग क्रॉस ब्रेसिंग इन डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, इससे क्या होगा, लेटरल फोर्सेस रेजिस्ट होंगी, प्रोवाइडिंग एडिशनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एंकरिंग फर्नीचर, secure heavy furniture and appliances to walls to prevent them from toppling over during an earthquake. Use safety straps for items like television, bookcases and refrigerators. तब जो हैवी फर्नीचर और अप्लायंसेस हैं उनको वॉल से अच्छे से सिक्योर करके रखें, जिससे कि अर्थक्वेक आने से वो क्या हो, वो गिरे नहीं, डैमेज ना हो। तो सेफ्टी स्ट्रैप्स यूज करने चाहिए आपको ऐसे आइटम्स के लिए। एंड फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, इक्विप ऑल बिल्डिंग्स, सारे बिल्डिंग्स को इक्विप करना है विद फंक्शनिंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, जिससे कि अगर फायर हो तो आप क्विकली उनको एक्सेस कर पाओ, दैट में ब्रेक आउट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल और गैस लाइन रप्चर्स। earthquake safety measures, if you find yourself outdoors during an earthquake, तो अगर आप बाहर हो और earthquake हो तो क्या precautions लेने हैं आपको। seek open space, आपको large open area में जाना है, जैसे कि पार्क में या empty field में, जिससे कि avoid falling debris, की आपके ऊपर building, trees या street lines ना गिर जाएं। stay in your vehicle, if you are driving, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो pull over to a safe open area, तो आपको safe open area पे जाना है, अपने व्हीकल के अंदर ही रहना है until the shaking stops। अवॉइड यूज स्टॉपिंग अंडर ब्रिजेस या ओवरपासेस, पाइपलाइंस, इन सब के पास नहीं जाना है। अवॉइड हजार्डस एरियाज, स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ट्रीज, इलेक्ट्रिकल पोल्स, इन सब से दूर रहना। इफ यू आर इंडोर, अगर आप अंदर हो, अर्थक्वेक आ रहा है, तब क्या करना है, टेक शेल्टर, गेट अंडर अ स्टर्डी टेबल, तो आपको टेबल या डेस्क के नीचे शेल्टर लेना है। एंड होल्ड ऑन अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स, और जब तक शेकिंग नहीं रुकती है तब तक वहीं रहना। प्रोटेक्ट योर हेड, अपने हेड को प्रोटेक्ट करके रखना है, अगर आप बेड पे हो तो आपको पिलो का यूज करना है अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अवॉइड हैवी ऑब्जेक्ट्स, स्टे क्लियर ऑफ कैबिनेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, कुकिंग अप्लायंसेस, इन सबसे दूर रहना है, या बाकी हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना है। टर्न ऑफ यूटिलिटीज, पावर सप्लाईज, गैस सप्लाई, इन सबको बंद कर देना है, जिससे कि फायर या गैस लीक्स ना हो। व्हाट शुड यू डू इफ यू आर इंडोर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, तो अगर आप अंदर हो तो अर्थक्वेक में क्या करना चाहिए। न्यू वर्ड्स, इलेक्ट्रोस्कोप, ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करते हैं। इंडक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करना विदाउट डायरेक्ट। सिस्मिक वेव्स क्या है, वेव्स ऑफ एनर्जी जो ट्रैवल करते हैं अर्थ से एज अ रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। एपिसेंटर वो पॉइंट है अर्थ सरफेस का जो डायरेक्टली अर्थक्वेक के फोकस के ऊपर होता है। रिचर स्केल क्या है, लॉगरिथमिक स्केल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं अर्थक्वेक का। कंडक्टिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल की वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करें। टेक्टोनिक प्लेट्स, लार्ज पीसेस हैं अर्थ क्रस्ट की जो मूव करती है और इंटरेक्ट करती है बाउंड्री पे। ओजोन क्या है, मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, जो कैसे बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के स्प्लिटिंग से बनता है ड्यूरिंग लाइटनिंग। इलेक्ट्रिक चार्जेस फंडामेंटल है इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए। ऑब्जेक्ट्स कैसे चार्ज हो सकते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन से। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस और मैग्नीट्यूड को डिटेक्ट करता है। लाइटनिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होता है। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या करते हैं, बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं एक सेफ पाथ प्रोवाइड करके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए। अर्थक्वेक कैसे हो सकते हैं, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से हो सकते हैं ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स। सेस्मिक वेव्स कैरियर्स हैं अर्थक्वेक एनर्जी का थ्रू दी अर्थ। रिचर स्केल क्या करते हैं, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल मटेरियल्स का यूज करते हैं एंड बेस्ड आइसोलेशन टेक्निक्स। सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, उसमें क्या होते हैं, शेल्टर लेना एंड टर्निंग ऑफ यूटिलिटी। Tack in the correct option in the OMR sheet. What experiment did Benjamin Franklin conduct in 1752 to demonstrate that lightning is an electrical discharge? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था ये शो करने के लिए कि लाइटनिंग क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, तो उन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट किया था। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर का प्राइमरी पर्पस क्या है, बिल्डिंग्स को लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाना है। विच सेस्मिक वेव्स, कौन सी सेस्मिक वेव्स फास्टेस्ट ट्रैवल करती हैं और फर्स्ट हैं टू डिटेक्ट बाय अ सेस्मोग्राफ, ये कौन सी हैं, प्राइमरी वेव्स हैं, पी वेव्स। एंड व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब, कौन सा टर्म यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए वो पॉइंट जो अर्थ सर्फेस का डायरेक्टली अबव है फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक से, तो वो कौन सा पॉइंट है, एपिसेंटर। Which of the following is not a method of charging a body, बॉडी को चार्ज करने का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, दैट इज आइसोलेशन। Fill in the blanks. The dash is an instrument used to detect the presence, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेजेंस और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करता है बॉडी का, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। डैश वेव्स आर मोस्ट पावरफुल, और कौन सी सबसे पावरफुल सेस्मिक वेव्स होती हैं जो क्या करती हैं, मोस्ट डैमेज कॉज करती हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो ये कौन सी होती हैं, एल वेव्स, या फिर इनको और क्या बोल सकते हैं, और सरफेस वेव्स।
द डैश स्केल इज कॉमनली यूज, कौन सा स्केल यूज होता है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए? इट इज द रिचर स्केल. लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड ऑफ लॉन्ग, लाइटनिंग कंडक्टर किससे बना होता है? लॉन्ग कॉपर रॉड से जिसके शार्प पॉइंट्स और स्पाइक्स होते हैं. डैश आर साइंटिस्ट हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ, वो साइंटिस्ट क्या कहलाते हैं जो अर्थक्वेक और सेस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सेस्मोलॉजिस्ट. नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप डिटरमाइन कर सकता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ट्रू. लाइटनिंग अकर्स व्हेन द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एयर, लाइटनिंग कब होती है? जब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एयर की ब्रेक डाउन हो जाती है और डिस्चार्ज को अलाउ करती है. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक में तो फोकस होता है, वो पॉइंट है जो अर्थ के सर्फेस पे डायरेक्टली अबव होता है, एपीसेंटर के. फॉल्स. मेन कॉज अर्थक्वेक का क्या है? मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. ट्रू. फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट ये कंडक्ट हुआ था ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या नेचर होता है इन सर्किट्स. फॉल्स. तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप इसको रीड करो अच्छे से. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.